Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome dear students. How are you? Hope so you will be fine. The Smart School Peshawar Gulbahar campus and Canal Town campus. Dear students, as you know that you are having your second monthly assessment in September and you are not coming to school and not attending the regular classes. That's why we are providing guidance to you through videos. So watch these videos carefully because all these videos are based on attemptation and preparation of your papers and you can take help from these videos. Introduction, lecture number 6, class 7, subject computer studies, subject teacher Ma'am Iram Salim. Online with computers, book 7. This is your computer book, so take out your books. Unit 3, mail merge in MS Word 2010, page number 35. Okay students, this is page number 35 of your computers book. As you know that you are having 2 units included in your second monthly assessment syllabus and we have covered unit number 2 in our previous lectures, that was more features of MS Word 2010, and we have done some of exercises related to the paper. Now we are going to start unit number 3, that is mail merge in MS Word 2010. In this unit we will read about that how the mail merge in MS Word and envelopes and labels. Define envelopes and labels. ओके स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हम लोग मेल को मर्ज करने का जो तरीका है, जो स्टेप्स हैं, उनको सीखेंगे कि आप लोग मेल को मर्ज कैसे कर सकते हैं. ठीक है, आप लोग इसको MS वर्ड में कैसे मर्ज कर सकते हैं मेल्स को, उनके हम डिफरेंट स्टेप्स पढ़ेंगे और इसके अलावा जो है कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे जो आपके पेपर से रिलेटेड होंगी. उन एक्सरसाइजेस को हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपके पेपर से रिलेटेड है और जो आपके दोनों चैप्टर से कंबाइन. मैंने आप लोग के लिए कुछ MCQs, कुछ ब्लैंक्स और अदर एक्सरसाइजेस मैंने आप लोग के लिए प्रिपेयर किए हैं. आप लोगों ने उन्हीं एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करनी है, उनको राइट करना है और उनको लर्न करना है. ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों की पेपर के लिए रिवीजन हो रही है और आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से रिवाइज करना है, इसको लर्न करना है और राइट भी करना है. बाकी का जो काम रह जाएगा इंशाल्लाह वो हम आफ्टर असेसमेंट्स करेंगे. Now I am going to start reading, so look at your books carefully. Mail merge. Mail merge is a feature provided by the MS Word 2010 that is used to send the same basic letter with slight modifications to a large number of people at the same time. The mail merge facility is widely used when letters with identical information have to be sent to many people. For mail merge we need 2 documents. ओके स्टूडेंट, मेल मर्ज जो है वो एक फ़ीचर है जो कि MS वर्ड प्रोवाइड करता है हमें. ये बेसिकली तब यूज़ होता है जब हमें सेम बेसिक लेटर को सेंड करना होता है विद थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस उसमें करनी होती है और हमने बहुत सारे लोगों को एक ही टाइम पर उसको सेंड करना होता है, उस लेटर को या उस मेल को थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस के साथ. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मेल मर्ज फैसिलिटी को यूज़ करते हैं. ठीक है, मेल मर्ज फैसिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जब लेटर्स को आइडेंटिकल इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत सारे लोगों को सेंड किया जाता है. ठीक है, अब मेल मर्ज के लिए हमें 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए. सबसे पहले मेन डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स टेक्स्ट ऑफ अ लेटर. सबसे पहले हमें मेन डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें लेटर का जो टेक्स्ट है मतलब जो लेटर का जो टेक्स्ट है जिस डॉक्यूमेंट में होगा हमें वो डॉक्यूमेंट चाहिए, वो मेन डॉक्यूमेंट है. नंबर 2, data source, the file that contains name and address, that is data of recipients. और सेकेंडली हमें क्या चाहिए होगा, वो फाइल चाहिए होगी जिसमें नेम और एड्रेस होगा. ठीक है, नेम और एड्रेस किसका होगा, मतलब जिसको आप लोग सेंड करना चाह रहे हैं, जो रिसिपिएंट है उसका जो डेटा है वो हमें चाहिए होगा. डेटा में क्या क्या चाहिए होगा, उसका नेम और एड्रेस. Mail merge is the process of combining the main document with the data source containing the names and addresses of the recipients. The final document is called the merge document, which is mailed to all those to whom it is to be sent. ओके स्टूडेंट्स, मेल मर्ज जो है वो एक प्रोसेस है मेन डॉक्यूमेंट को कंबाइन करने का डेटा सोर्स के साथ. ठीक है, डेटा सोर्स को और मेन डॉक्यूमेंट को कंबाइनिंग करने का जो प्रोसेस है उसको मेल मर्ज कहते हैं.
और इसके अलावा जो फाइनल डॉक्यूमेंट हमारे पास आती है उसको मर्ज डॉक्यूमेंट कहते हैं, जिसको फिर सब लोगों को सेंड करना होता है। ठीक है, जिन जिनको सेंड करना होता है वो फिर उसको मर्ज डॉक्यूमेंट कहते हैं, जो फाइनल डॉक्यूमेंट होती है। मेल मर्ज प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। मेल मर्ज प्रोसेस के लिए 3 स्टेप्स गिवन है आप लोगों को। क्रिएटिंग द मेन डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आप मेन डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे। क्रिएटिंग द डेटा सोर्स, फिर आप उसके बाद डेटा सोर्स को क्रिएट करेंगे, लाइक रिसिपिएंट का नेम और एड्रेस एट्सेट्रा। थर्ड स्टेप इज़ मर्जिंग द मेन डॉक्यूमेंट एंड डेटा सोर्स इनटू अ सिंगल डॉक्यूमेंट और लेटर। और उसके बाद आपने क्या करना है कि मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स को आप लोगों ने मर्ज करना है और आप लोगों ने उससे एक सिंगल डॉक्यूमेंट और लेटर बनाना है। ठीक है, टू परफॉर्म मेल मर्ज फॉलो द गिवन स्टेप्स। मेल मर्ज परफॉर्म करने के लिए आप लोगों को गिवन स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1, नंबर 1, ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, टाइप द लेटर विद ऑल द नीडेड टेक्स्ट, लीविंग सफिशिएंट ब्लैंक स्पेसेस और एरियाज फॉर इनपुट्स फ्रॉम द डेटा सोर्स सच एज नेम एंड एड्रेस। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है, आप लोगों ने अपना पूरा लेटर टाइप करना है और आप लोगों ने उस टेक्स्ट की जगह को आप लोगों ने उसकी जगह पे ब्लैंक स्पेसेस छोड़ने हैं जहाँ पर आप लोग डेटा इनपुट करेंगे। फॉर एग्जांपल रिसिपिएंट का जो नेम और एड्रेस है उसके लिए आप लोग स्पेस छोड़ देंगे और बाकी जो है आपने फुल लेटर को टाइप कर देना है। ठीक है, क्लिक ऑन द मेलिंग्स टैब, उसके बाद आप लोगों ने मेलिंग्स टैब पे क्लिक करना है। ठीक है, मेलिंग टैब्स आपको कहाँ नज़र आ रहा है, सबसे ये जो सेकंड वन जो आपके पास डिफरेंट टैब्स बने हुए हैं। ठीक है, वहाँ से आप लोगों ने मेलिंग्स टैब को क्लिक करना है। मेलिंग्स टैब के बाद आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट पेज, क्लिक ऑन स्टार्ट मेल मर्ज, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट अपीयर्स। उसके बाद आपने क्या करना है, मेल मर्ज को क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, उसमें आपके पास एक ड्रॉप डाउन जो है मेन्यू अपीयर हो जाएगी। क्लिक ऑन स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजर्ड ऑप्शन, आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजर्ड ऑप्शन को क्लिक करना है। ठीक है, द मेल मर्ज टास्क पैन अपीयर्स ऑन द राइट ऑफ योर स्क्रीन। मेल मर्ज टास्क पैन जो है वो आपकी स्क्रीन की राइट साइड पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, एज यू कैन सी इन फिगर 3.2, आप लोग 3.2 फिगर में देख सकते हैं, इस तरह की आप लोग के पास एक टास्क पैन ओपन हो जाएगा। स्टेप 2, क्लिक ऑन लेटर्स फॉर द डॉक्यूमेंट टाइप। आप लोगों ने डॉक्यूमेंट की में जो लेटर्स टाइप किए ना, ठीक है, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट टाइप में क्या चूज़ करना है, लेटर्स को, क्योंकि आपने लेटर टाइप किया है तो आप लोग यहाँ पर लेटर्स को चूज़ करेंगे, क्लिक करेंगे। नंबर 2, क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ठीक है, फिगर 3.2 में आप लोग देख सकते हैं स्टेप 2, द न्यू टास्क पैन आस्किंग यू टू सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट अपीयर्स। आपके पास जो न्यू टास्क पैन है वो अपीयर हो जाएगी, एज यू कैन सी इन फिगर 3.3। वहाँ पर आपसे पूछेंगे, आस्किंग, आपसे परमिशन मांगेंगे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग न्यू जो डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया है, स्टार्ट किया है, उसकी परमिशन आपसे मांगेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसको चूज़ कैसे करना है, स्टेप 3 में देखें, क्लिक ऑन यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट अंडर सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में आपके पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें से आप लोगों ने यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। नंबर 2, क्लिक ऑन नेक्स्ट सेलेक्ट रिसिपिएंट्स, द न्यू टास्क पैन आस्किंग यू टू सेलेक्ट रिसिपिएंट्स लिस्ट अपीयर्स। अगेन आप लोगों ने नेक्स्ट सेलेक्ट रिसिपिएंट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक न्यू टास्क पैन अपीयर हो जाएगी जो आप लोगों से कुछ और इन्फॉर्मेशन आस्क करेगी। इन स्टेप 4, you can see in figure 3.4, the recipients can come from either an existing file or table or you can create a new list. To type a new list, follow the given steps. आप लोगों ने क्या करना है कि या तो आपके पास कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट होगी, वहाँ से आप रिसिपिएंट चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप लोग टाइप अ न्यू लिस्ट को चूज़ करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्रिएट को क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट को क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन टाइप अ न्यू लिस्ट अंडर सेलेक्ट रिसिपिएंट्स। आप लोगों ने क्या करना है, टाइप अ न्यू लिस्ट को सेलेक्ट करना है। क्लिक क्रिएट को क्लिक करना है। द न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। आपके पास न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज,
ओके 37 पेज, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के पास अपीयर हो गया है, ये न्यू डायलॉग बॉक्स है। अब आप लोगों ने क्या करना है, क्लिक ऑन कस्टमाइज कॉलम्स टू मॉडिफाई द फील्ड्स दैट कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स ओपन्स। अब आप लोगों ने यहाँ से क्या करना है, कस्टमाइज कॉलम ऑप्शन को चूज़ करना है। यहाँ पर आप लोग फिगर 3.5 में देख सकते हैं। यहाँ से आप लोगों ने कस्टमाइज कॉलम्स ऑप्शन को चूज़ करना है, ठीक है, ताकि आप लोग फील्ड्स को मॉडिफाई कर सकें। अब आपके पास एक नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, एज यू कैन सी इन फिगर 3.6। Delete any unnecessary field names or add new fields which you want. If you want to delete company name, select it and click delete. Microsoft Word displays a message asking you to delete company name. ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने थोड़ी बहुत चेंजेस ही करनी होती है ना। फॉर एग्जांपल आप सेम मैसेज डिफरेंट कंपनीज़ को सेंड करना चाह रहे हैं या डिफरेंट पीपल को सेंड करना चाह रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने जो उस चीज़ उसमें चेंज करनी है अपनी डॉक्यूमेंट में, अपने लेटर में, तो आप लोग इस कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट से चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने कोई अननेसेसरी फील्ड या नेम्स को डिलीट करना है तो आप लोग यहाँ से ऐड और डिलीट का ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आप लोग किसी कंपनी का नेम डिलीट करना चाहते हैं तो आप लोग डिलीट को क्लिक करेंगे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिस्प्लेस का एक मैसेज आएगा जो आपसे ये पूछेगा कि आप लोग इस नेम को डिलीट करना चाहते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट फील्ड कंपनी नेम, एनी इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन दिस फील्ड विल बी डिलीटेड एज वेल। आपसे परमिशन मांग रहे हैं कि आप कंपनी नेम को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप लोग येस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इन फिगर 3.7। क्लिक येस टू डिलीट, अदरवाइज नो। अगर आप लोग डिलीट करना चाहते हैं तो आप येस पे करेंगे, अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो आप लोग नो पे कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 5, सिमिलरली टू ऐड अ न्यू फील्ड क्लिक द एंट्री आफ्टर विच यू वांट टू ऐड अ न्यू फील्ड। इसी तरह से अगर आप लोग कोई न्यू एंट्री करना चाहते हैं तो आप लोग ऐड फील्ड को क्लिक करेंगे और वहाँ से आप लोग जो भी एंट्री करना चाहते हैं, जो भी फील्ड एंटर करना चाहते हैं, आप लोग ऐड कर सकते हैं। क्लिक ऑन ऐड बटन, द ऐड फील्ड डायलॉग बॉक्स ओपन्स। आप लोग जब ऐड बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐड फील्ड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, एज यू कैन सी इन फिगर 3.9। टाइप द फील्ड नेम इन द बॉक्स एंड क्लिक ओके। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कोई फ़ोन नंबर ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर फ़ोन नंबर टाइप करेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे और उसके बाद आप लोग ओके कर देंगे। नाउ नेक्स्ट पेज, नंबर 7, you will see the field getting inserted in the box. Click OK button. Your new address list box is ready with all the fields you want. ओके स्टूडेंट्स, आप लोग फिगर 3.10 में देख सकते हैं कि आप लोगों की जो फील्ड के जो नेम्स थे, ये जो लिस्ट थी आपके एड्रेस लिस्ट बॉक्स जो थी, तो बॉक्स जो था वो अब रेडी हो चुका है और आप लोगों ने जो जो ऑप्शंस या जो जो फील्ड्स उसमें ऐड की हैं तो वो आप लोगों के पास शो हो रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों का जो एड्रेस लिस्ट बॉक्स है वो रेडी है। उसके बाद आपने क्या करना है, नंबर 8, टाइप द रिकॉर्ड्स हेयर प्रेसिंग द टैब की टू मूव टू द नेक्स्ट फील्ड। आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है आपका जो रिकॉर्ड है वो आप लोग यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और आप लोगों ने नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए टैब की को मूव कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग जब टैब की मूव करेंगे तो आप नेक्स्ट टैब में मूव हो जाएंगे। जब आप टैब की को प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट टैब में मूव हो जाएंगे, एज यू कैन सी इन फिगर 3.11। Number 9, to add another recipient's information, click new entry button. After typing all the records, click on OK button. अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग एड्रेसेस हैं तो वो रहेंगे। अगर आप कोई न्यू उसमें ऐड करना चाहते हैं एंट्री तो आप लोग ऐड बटन को क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से न्यू एंट्री पे आप लोग क्लिक करेंगे और फिर वहाँ पर आप लोगों ने उसका जो एड्रेस है वो टाइप करना है, जो भी इंफॉर्मेशन है, और उसके बाद आप लोगों ने ओके को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज, Number 10, the Save Address List dialog box opens. Type the name of file in file name box and click Save. उसके बाद क्या होगा कि सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने उस फाइल का नेम यहाँ पर टाइप कर देना है, एज यू कैन सी इन फिगर 3.13, और उसके बाद आप लोगों ने उसको सेव कर देना है, ठीक है। आपने सेव पे क्लिक कर देना है। नंबर 11, द मेल मर्ज रिसिपिएंट्स डायलॉग बॉक्स ओपन्स, क्लिक ऑन ओके। उसके बाद मेल मर्ज रिसिपिएंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, एज यू कैन सी इन फिगर 3.14। आप लोगों ने ओके को क्लिक कर देना है। नंबर 12, क्लिक ऑन नेक्स्ट, राइट योर लेटर, द न्यू टास्क पैन ओपन्स, नाउ फॉलो द गिवन स्टेप्स टू कंटिन्यू द मेल मर्ज प्रोसेस। उसके बाद क्या होगा, आप लोगों ने दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक करना है
और अपना लेटर लिखना है, आपके पास एक न्यू टास्क पैन ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो करना होगा अपने मेल मर्ज प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। बट स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारी रीडिंग जो थी वो यहाँ तक थी, पेज नंबर 40 तक। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे रीडिंग को। अब हम चलते हैं रिटन वर्क की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, हेयर इज़ अ स्केच और सैम्पल ऑफ योर पेपर। आप लोग के पेपर का जो एक सैम्पल है वो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों के पास 4 क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है कि आप लोगों ने इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज करनी है, ताकि आप लोगों के पेपर में जो एक्सरसाइजेज आएँ तो आप लोग उसको ईजीली सॉल्व कर सकें, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो एक्सरसाइजेज हम लोगों ने स्किप की हैं, इंशाल्लाह वो हम पेपर्स के बाद दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आज डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन दैट विल ओपन द डेटा सोर्स फाइल ड्यूरिंग मेल। इसमें से कौन सा जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है जो डेटा सोर्स को ओपन करता है ड्यूरिंग मेल, ठीक है। दैट विल ओपन द डेटा सोर्स फाइल ड्यूरिंग मेल के दौरान वो फाइल डेटा सोर्स को जो है वो ओपन कर देता है। इनमें से वो कौन सा डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है? MS एक्सेल, MS वर्ड और MS एक्सेस। आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये दोनों चैप्टर से कंबाइन मैंने बनाई हैं, ठीक है, फ्रॉम यूनिट 2 एंड फ्रॉम यूनिट 3 ऑल्सो। तो आप लोगों ने दोनों यूनिट्स को अच्छी तरह से स्टडी करना है और उसके बाद इनको सॉल्व करना है। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स कंटेन्स द ऑप्शन टू स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज। इनमें से कौन से टैब में ये ऑप्शन होता है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज का? मेलिंग, इंसर्ट, डिज़ाइन। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द रिसिपिएंट्स इन मेल मर्ज। जो रिसिपिएंट्स के नेम्स और एड्रेसेस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स, मेल मर्ज विज़ार्ड। Number 4, which of the following features of MS Word allows you to send a letter to more than one recipients at the same time? इनमें से कौन सा फीचर MS Word का आपको अलाउ करता है कि आप लोग एक से ज़्यादा रिसिपिएंट्स को एक ही टाइम पे लेटर सेंड कर सकें? मेल मर्ज, प्रिंट डॉक्यूमेंट, सेव डॉक्यूमेंट। नंबर 5, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स वी नीड फॉर अ मेल मर्ज इज़। हमें कितनी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं किसी भी मेल को मर्ज करने के लिए? 1, 2 और 3। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने राइट ऑप्शंस पे टिक करना है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। यू हैव गिवन सम वर्ड्स। आप लोगों ने इस वर्ड बैंक की हेल्प से आप लोगों ने ब्लैंक्स को फिल करना है। नंबर 1, अ डैश कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स कहाँ पर होती हैं? टेबल में, ठीक है। नंबर 2, डिवाइडिंग अ सिंगल सेल इंटू मल्टीपल सेल्स इज कॉल्ड डैश। एक सेल को मल्टीपल सेल्स में डिवाइड करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग। नंबर 3, द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम इन अ टेबल इन वर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ डैश। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को किसी भी टेबल में वर्ड डॉक्यूमेंट के उसको क्या कहते हैं? सेल। नंबर 4, द सिंबल दैट अपीयर्स ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ अ टेबल व्हेन वी सेलेक्ट इट इज कॉल्ड डैश। वो सिंबल जो कि टेबल के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे नज़र आता है जब हम उसको सेलेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? टेबल मूव हैंडल। नंबर 5, व्हेन वी सेलेक्ट अ टेबल इन MS Word द न्यू टैब्स दैट अपीयर्स ऑन द रिबन आर डैश एंड डिज़ाइन। जब हम लोग टेबल को सेलेक्ट करते हैं MS Word में तो हमारे पास जो न्यू टैब्स अपीयर्स होती हैं वो रिबन पे वो कौन कौन सी हैं? लेआउट एंड डिज़ाइन। ओके स्टूडेंट्स, दीज बोथ एक्सरसाइजेज इज़ योर होमवर्क। आप लोगों ने इन दोनों एक्सरसाइजेज को A4 शीट्स पे लिखना है, ठीक है, विद ब्लू पेन्स एंड मार्कर्स। और आप लोगों ने डेट, होमवर्क और डे मेंशन करना है, प्रॉपर लाइंस लगानी है, दोनों एक्सरसाइजेज को राइट भी करना है और लर्न भी करना है, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क और आप लोगों ने उसकी पिक्चर्स लेनी है और उसको स्कूल के व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, you should do your reading and you should do your homework properly and tidily. Your writing should be neat and also learn these both exercises. Keep learning. Thank you. Allah Hafiz.